are ready to speak on the subject which is considered confidence. Very good afternoon to all of you. Most respected this session's moderator, Hage Kodin sir, Chubegi, the national coordinator, and all the ladies and gentlemen present here. I stand here to participate on a topic as given the diversity, inclusion, mutual respect. That is the topic, and the sub-theme is the indigenous communities and their culture and faith towards the sustainability and development. Before going into the subtopic, I would like to participate on the main topic, that is diversity, inclusion, and mutual respect. When we talk of diversity, the entire creation itself is based on the diversity. The spirit of the nature is diversity. The divine loves the diversity. The God loves the diversity. That's why God has created millions of gods and goddesses so that He like to be worshipped in the various forms. And appreciating the diversity and accommodating the individual capacity and abilities, goodness or weakness is the inclusion. And they exist, they coexist peacefully by mutual respect. So diversity can be broadly classified into four. Internal diversity. In internal diversity, that is the diversity in gender, as we have seen the earlier session, the LGBT and the various the inborn characteristics and emotions, thoughts, age diversity. Another is the external diversity. The external diversity is the status, the economy, the faiths, tradition, culture, and religion. And the third is organizational diversity that deals with the rules and regulation, diversity in the working environment. And the fourth is world perspective diversity. I think that will be dealt in the next session. As of now, before adding in this G20 agenda, this topic has been discussed and debated in many forums in the world highest forums, but yet we have not found any substantial result or substantial outcome of it. Maybe शायद जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है जो इस टॉपिक को समझने में their perspective is different. Maybe they have not got deeper into this topic. So this is very fortunate enough कि इस बार in the presidency of India ये G20 में ये C20 जो सिविल 20 में जो शामिल है इंडिया शामिल किया है, इसलिए now all need to look this particular subject in the perspective of Indian perspective, Indian cultural perspective. इंडियन की जो सोच है, इंडियन जो संस्कृति सभ्यता की सोच है, उस पर्सपेक्टिव में इसको देखने की जरूरत है। ये हमारे संस्कृति में इंडियन संस्कृति ये कोई डिबेट करने का, डिस्कस करने का बात ही नहीं है। दिस इज द वेरी जेनेसिस ऑफ द इंडियन कल्चर। दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज। ये हमारे लिए डाइवर्सिटी, म्यूचुअल और इंक्लूजन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे डिस्कशन का नहीं है, इससे हम जीता है। If you see to the Vedas, which is considered to be the ancient and most ancient and oldest scripture of the world, there also it's mentioned the importance of participations of every unit of the society, considering the mutual respect and the diversity. ये हमारे संस्कृति में ऑलरेडी वेदों से आया हुआ, और आप इसमें वेदों में देखिए, इसमें आपका जैसे हमारे सुबह हमारे जो
आज बेगी ने मेंशन करा था एक कम सत्यम बहुधा वदंती, जो है कि वन ट्रूथ बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ वन फैमिली। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे ऑल बी इन पीस, मे ऑल बी इन हैप्पी, मे नो वन सफर। तो ये जो दिस प्रिंसिपल्स इज इन द इंडियन संस्कृति, ये हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, ये हमारे इतनी सुंदर सभ्यता है, इतनी सुंदर संस्कृति, यही हमारी जो इंडिजिनस का संस्कृति भी यही कहती है। हमारी संस्कृति में बहुत सुंदर ये बात है, आप सुखी रहे, आप सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, ये प्रकृति है। मैं सुखी रहूं, आप दुखी रहे, ये विकृति है। दिस इज अगेंस्ट द नेचर। मैं भले ही दुखी रहूं लेकिन अब सुखी रहे, ये सनातनी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे इंडिजिनस की संस्कृति, यही चीज हमें सिखाती है। हम अगर युद्ध भी लड़ता है तो धर्म का युद्ध कहा जाता है इसको, धर्म युद्ध। आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण में, दिन में युद्ध लड़ता है, शाम को बातचीत करता है, एक दूसरा से मिलता है, हम धर्म का युद्ध लड़ता है। लेकिन इसके जो नैरेटिव से कैसे चेंज हुआ है, जो वेस्टर्न जो सोच में, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में इस नैरेटिव को क्या, देयर इज एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वार, मतलब जायज है प्यार और लड़ाई, और प्रेम और लड़ाई में, हर जंग और प्रेम इश्क में हर चीज जायज है। ये जो है गलत नैरेटिव्स, हमारे लिए हर चीज जायज नहीं हो सकता है। अब युद्ध है तो युद्ध का कुछ कानून है, युद्ध का कुछ नियम है, उसको आपको फॉलो करना, कुछ धर्म से, उसको धर्म से फॉलो करना, उसको आप हर बीच धोखा देके जीतना, चल कपट करके जीतना, ये हमारे लिए धर्म नहीं। और जहाँ तक हम प्रेम का जो बात करता है, जब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में देखने से हम जब प्रेम का जो बात करता है तो जब लड़का लड़की का, मेल एंड वुमेन को लव, उसको सिर्फ प्रेम कहता है। लेकिन हमारे जो प्रेम है इसको ईश्वरीय रूप का दिया गया है। आप देखेंगे कि आपका राधा का प्यार, मीरा का प्यार, प्रेम, तो इसमें इससे लेके कबीरदास ने बहुत सुंदर जो दोहा, आप सब जो जानते हैं इसको, पोती पोती पर जन्म हुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम सो पंडित हो। आपको बड़ा इतना किताब पढ़ के भी आप पंडित नहीं होता है, लेकिन ढाई अक्षर जो 2.5 letters ऑफ द लव इफ यू नो, आप यू बिकम द, आप ज्ञानी बन जाता है, आप पंडित बन जाता है, यू बिकम द नॉलेजेबल। वो सब लड़की लड़का का प्यार नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कहते, क्योंकि वो जब आपको प्यार मालूम होगा, वो जो प्रेम मालूम होगा, यू स्टार्टेड लविंग एवरी क्रिएचर्स, यू स्टार्टेड लविंग, यू स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग ऑल द डाइवर्स, आप सबको रेस्पेक्ट करने लगता है। इसलिए कहता है कि जब आप ढाई अक्षर प्रेम का जब आप पढ़ता है, मालूम हो जाता है, तब आपको पंडित बन जाता है। तो यही चीज़ हमारे संस्कृति में, हमारे जो इंडिजिनस संस्कृति में, इंडिजिनस सभ्यता में भी सिखाता है। हमारे जो नेचर है, तो यही चीज़, वी आर नेचर वर्शिपर। नेचर वर्शिपर होने के वजह से द बिलीफ सिस्टम, द फेथ, द कैरेक्टरिस्टिक वी हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द नेचर। हम वो अपने प्रकृति से वो सब हम ड्राइव करता है। और प्रकृति का आप देखिए, जितना भी हम जो वर्ल्ड में आज जो चर्चा चल रहा है, जो डाइवर्सिटी, म्यूचुअल इंक्लूजन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आप प्रकृति में देखने से यही प्रकृति में कितना डाइवर्सिटी, डाइवर्स, जैसे आसिफ बेगी ने कहा प्लांट में भी वो डाइवर्स है, एनिमल्स में डाइवर्स है, टोपोग्राफी में, एवरीथिंग देयर इज दैट, बट दे आर लिविंग इन द सेम प्लैनेट, वो एक साथ रहता है, एंड दे आर एकोमोडेटिंग ईच अदर बाय म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो ये चीज़ हमारे जो कम्युनिटी, इंडिजिनस कम्युनिटीज जो है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमको ऐसा सभ्यता मिला है, ऐसा हमको जो हमारी संस्कृति, जो हमारे पूर्वजों ने जो दिया है, कि हम नेचर से, प्रकृति से ये चीज़ को सीखने को मिलता है। तो इसलिए ये दुनिया को अब ये चीज़ समझना है, दुनिया को हमारे जो इंडिजिनस का पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। और इसमें क्योंकि जब हम नेचर का बात करता है तो हमको ये सिखाया जाता है कि एवरी क्रिएचर हैज अ डिवाइनिटी इन देम, मतलब हर क्रिएचर्स में हम क्या देखता है, ईश्वर का रूप देखता है।
इसलिए हम उसको पूजा करते हैं। इसलिए हम हर क्रिएचर, चाहे वो आपका कीड़ा हो, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, पेड़ हो, पौधा, जिस को हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वी सी डिवाइन इन देम। ये हमारी संस्कृति है। अनटिल एंड अनलेस आप उसमें डिवाइन के रूप नहीं देखेंगे, अनटिल एंड अनलेस यू एक्सेप्ट व्हाटएवर द क्वालिटी, जो आपका खराब हो, अच्छा हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका म्यूचुअल रेस्पेक्ट आएगा ही नहीं। तो ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट कहाँ से आएगा? When you started seeing others as a divine, others as a divine person, divine spirit, ये हमारे नेचर जो हमको सिखाती है, जो हमारी संस्कृति हमको सिखाती है। तो इसमें जब आता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जब, जैसे मैंने कह रहा था कि जो वेस्टर्न कल्चर का जो उसमें देखने का नजरिया है, शायद उसको गौर से मालूम नहीं है, इसलिए इसको क्योंकि इस इतिहास से लगता है। अगर इतिहास में आप देखेंगे तो जितना भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, दैट इज बीइंग रूल्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज, अगर आपको डाइवर्सिटी में रेस्पेक्ट है, अगर आप इंक्लूजन में म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, तो दूसरा देश को आक्रमण करने का जरूरत ही नहीं। सिर्फ आक्रमण ही नहीं, उसको शासन ही नहीं किया, बल्कि अपना जो फेथ, अपना जो कल्चर, अपना जो ट्रेडिशन, उसको इम्पोज किया। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। दैट मीन्स यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग देयर कल्चर, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग देयर फेथ। अगर आपको ये रेस्पेक्ट है तो आपका कैसे आपका कल्चर को, आपका फेथ को आप थोप सकता है? तो इसलिए जो अपना फेथ को थोपना, अपना कल्चर को थोपना, ये जो है सरासर मतलब इससे अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। इसके लिए जो कन्वर्जन इज कंप्लीट, आई कंसिडर इट एज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में, मेरी मान्यता में कुछ कमी होगा, डेफिनेटली देयर में भी सम, लेकिन कुछ कमी होगा, कुछ बुराइयां होगा, लेकिन तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप दबा के, उसको खत्म करके वहां पे अपना संस्कृति आप स्थापित करो, ऐसा नहीं हो सकता। या ये करना चाहिए कि अगर सच में आपको ह्यूमैनिटी की बात है, ह्यूमैनिटी सर्विस है, तो ये करना चाहिए कि उसका ईश्वरीय रूप को आप जगाइए, उसका कॉन्शियस को आप अपलिफ्ट कीजिए, उसको अपलिफ्ट करके उसका ईश्वरीय रूप को जगा के उसको अपना हिसाब से उसको सुधारने का मौका देना चाहिए, ना कि उसको खराब है बोल के, ना ही वो गलत है बोल के उसको दबा के अपना संस्कृति उसमें स्थापित करना चाहिए। इसलिए इन दिस अगस्त प्लेटफॉर्म I appeal कि we need to frame a stringent policy to curb this conversion। ये conversion जब हम इस तरह का जब बात करता है तो लोगों को लगता है कि we sounds like a very orthodox। ये क्या ट्रेडिशन का बात करते रहता है, कल्चर का बात करता है, रिलीजन का बात करते रहता है। Now is the age of technology, it's a modern era, it's an age of development, but we are forgetting what is the prime factor of the development। Peace is the prime factor of it। शांति ही उन्नति का मार्ग है। और ये शांति कहाँ से मिलती है? शांति जो आपको मिलेगी अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपने स्पिरिचुअलिटी। आपको पर्सनल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके आपका वो डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट until and unless you develop spiritual development। क्योंकि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होने से आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमैनिटी का अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। दे कैन बी यूज इन अगेंस्ट नेचर। लेकिन जब आपका पर्सनल, जब आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, जब आप में स्पिरिचुअल ज्ञान आता है, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेचर। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल जो है आदमी को गिव द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। स्पिरिचुअल मेक्स यू कंपैशनेट। स्पिरिचुअल गिव्स यू अ लव एंड रेस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, सेंस ऑफ सेल्फलेस, वो आपको देते। इसलिए स्पिरिचुअल वन अनदर point I want to mention is the world need to emphasize with the infrastructure and the personal development, spiritual development has to be given a very emphasis। spiritual development होना बहुत ही जरूरी है। और ये spiritual development, जैसे मैंने कहा, ये spiritual development यहाँ से हमारी संस्कृति से, हम लोग सभी जब भी संस्कृति का बात करना, आज जितना भी
हमारे जो मुख्य अतिथि है वो भी पूरे अपने संस्कृति के बारे में उसको बचाना है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है जितना काम कर रहा है और भी करेंगे। क्यों, क्या फायदा है संस्कृति को बचाने के लिए, क्यों अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए, क्यों, क्या फायदा है? क्योंकि ये अपना संस्कृति ही, अपना जो ट्रेडिशन कल्चर ही हमको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक समाज सुधारक इंसान बनाता है। तो इसलिए जब हमको ये हमारे संस्कृति को इम्पोर्टेंस अगर आप देता है, अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस देता है, तो ऑटोमेटिकली आपका समाज सुधार जाएगा। उसको अगर इम्पोर्टेंस देगा तो आपका उन्नति होगा। कोई ऐसा उन्नति नहीं हो सकता है कि आप जहाँ पे आपका शांत नहीं होगा, आपका पीस नहीं होगा, वहाँ आप कितना भी अभी वर्ल्ड आप देखिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट किया है, लेकिन उसके अंदर में वो शांति नहीं है। देयर इज नो पीस इन देयर माइंड। कोई फैमिली में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है, बल्कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेवलपमेंट वो अगेंस्ट में एक दूसरा को यूज कर रहा है। इसलिए इंडिया जो अभी जो इस समिट में G20 में इंडिया वेरी राइट कंट्री, राइट नेशन टू गिव द डायरेक्शन टू द वर्ल्ड। तो इसमें जो सस्टेनेबिलिटी का जब बात करता है, तो हमारे जो कल्चर को लेके, संस्कृति को लेके, हाउ वी कैन गो इनटू द सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें हमारे जो कल्चर है, जैसे हमने सुबह अच्छे ने मेंशन किया, वी हैव स्टार्टेड गुरुकुल सिस्टम जिन्हें इस कमिंग में और नया में, और जो हमारे बसर में मैजिक रेंगो, अभी जो हमारे जो पंगित में और आदि कम्युनिटी नीलों को, ये जो है हम जब गुरुकुल शुरू करता है, जो अपने ट्रेडिशन कल्चर का, मेनी पीपल क्वेश्चंस कि हमारे यहाँ गुरुकुल होता था, कभी ट्राइबल में गुरुकुल सुना है, इंडिजिनस कभी गुरुकुल हुआ? अभी ये पूरा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, RSS ऑर्गेनाइजेशन लेके गुरुकुल शुरू कर रहा है। इट्स नॉट दैट, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी सोचेंगे, अगर देखेंगे अपने संस्कृति को आप अच्छा से गौर से देखेंगे, तो हमारे जरूर गुरुकुल होता है। गुरुकुल कैसे होता है? नर्सरी हमारे परिवार का, हमारे वहाँ तो एजुकेशन, हमको पढ़ाई लिखाई, हमारे पूर्वजों में पढ़ाई लिखाई नहीं था, लेकिन समाज को कैसे चलाना है, कैसे अच्छा जिंदगी जीना है, ये हमारे परिवार में नर्सरी बिगिंस राइट फ्रॉम आवर फैमिली। वहाँ पे हमारे माँ पिताजी हमको छोटा छोटा मॉरल बेस्ड स्टोरीज, कहानी बताता है, हमारे किसको आदर करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे पेड़ को पूजा करना चाहिए, पेड़ एक करता है, पेड़ को करने से पहले कैसे पूजा करना चाहिए, नदी जाता है तो मछली मरने से पहले हम लोग अंडा को बना के अंडा फेंकता है नदी में, मैं आज मछली का जरूरत है, मुझे मछली जैसे, ये सब छोटा छोटा चीज और नर्सरी फ्रॉम आवर फैमिली। तो वहाँ फैमिली से जब आता है, तब हमारे जो कस्टम के बारे में आता है, ट्रेडिशन के बारे में जब बात होता है, अपने जेनोलॉजी के बारे में आता है, फोक टेल्स के बारे में आता है, ये जो है क्या है, ये हमारे लिए हायर लेवल का स्कूल्स रहता है। देन इसके बाद में हम जब जाता है कि समाज में हमारे कॉलेज है, दिस वेयर आवर गुरुकुल, ये हमारे लिए गुरुकुल की तरह ही था। जस्ट उसको अभी टू वीक जैसे राजेश जी ने सुबह बोल रहा था कि वी नीड टू चेंज, वी नीड टू रिफॉर्म, तो हमको डेफिनेटली वी नीड द रिफॉर्मेशन, बट रिफॉर्मेशन कीपिंग द एसेंस ऑफ आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर, कीपिंग द एसेंस ऑफ आवर इंडिजिनस। इसलिए ये हमारे रिफॉर्मेशन। तो हमारे उस समय में पढ़ाई नहीं होता था, बट देन वी हैव दैट काइंड ऑफ गुरुकुल सिस्टम। तो इसलिए इसको फिर अभी का मॉडर्न के साथ में हमको चलने के लिए हमने ये एक शुरू किया है, एंड वी आर वेरी प्राउड कि वहाँ पे अभी जब देखता है कि बच्चा लोग इतना अच्छा से सीखता है कि दे आर फ्लुएंटली स्पीकिंग देयर ओन मदर टंग, वो अपना भाषा में बात करता है, और उसका रूटीन ऐसा है कि उन लोग को खाने पीने का भी बॉयल खिलाता है, और एक दिन ऐसा रहता है कि उन लोग को जंगल में खुद जाने देता है, लकड़ी लेने देता है, सब्जी लेने देता है, उन लोग को ये पत्ता खाने का चीज़ है, ये पत्ता को नहीं खाने का चीज़ है, इसको तोड़ना है नहीं तोड़ना है, उन लोग को एजुकेट किया जाता है। और वी आर वेरी प्रिविलेज एंड लकी है कि उसमें हमारे जो विवेकानंद केंद्र जो है हमें सहायता दे रहा है, ये फॉर्मल एजुकेशन। इसमें भी बहुत सारा लोगों का कंफ्यूजन है, यहाँ
ऐसा ब्लेम करता है कि क्या बच्चा को सिर्फ पुजारी ही बनाना है, क्या बच्चा को क्या सिर्फ ट्रेडिशन कल्चर ही सिखाना, क्या वो डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, आईएएस नहीं बनेगा। फॉर दैट इसलिए हम लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन भी रखा है। फॉर्मल एजुकेशन को विवेकानंद केंद्र है, और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज, ये ट्रेडिशनल नॉलेज को हम लोग इंडिजिनस फेथ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इसको इम्पार्ट करें। और एम इसकी हमारे जो लोग हैं वहाँ से जो प्रोडक्ट जो ऐसा विद वेल इक्विप्ड विद ट्रेडिशनल एंड कल्चरल नॉलेज के साथ में अगर वो डॉक्टर भी बनता है, तो डॉक्टर में भी अगर जब वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट से, दवाई से ट्रीटमेंट नहीं कर सकने से ही शुड एबल टू चांट, वो अपना जो लैंग्वेज में वो पूजा भी कर सकना। ऐसा डॉक्टर हमको बनाना, ऐसा इंजीनियर जब जो हमको आर्किटेक्चरल ड्राइंग में ये में उसको कंफ्यूजन होता है, जब ट्रेडिशन का बनाना होने से ही शुड हैव दैट ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कैसे किस बम्बू को कब करना चाहिए, बम्बू किस सीजन में करना चाहिए। वी आर वेरी ब्यूटीफुल, हम लोग का इसमें इतना सुंदर ये नॉलेज है कि बम्बू को हम कब करता है, फुल मून में क्यों करता है, फुल मून में करने से टर्माइट बिल्कुल नहीं खाता है। यू नीड टू हैव दैट नॉलेज। क्यों नहीं खाता? क्योंकि बम्बू जब फुल मून में होता है, हम लोग का ये बताया जाता है कि हम लोग का माँ पिताजी ने बताया कि फुल मून होता है तो बम्बू जो है आपका रात भर सुबह से पूरा जाग के बैठता है। जब फुल मून समय में वो जागता है कि हमको इंसान का जरूरत है, अभी इंसान का जरूरत है, इसलिए हमको रेडी होना है कि इंसान के लिए हमको इंसान ले जाना है, इसलिए वो पूरा जाग के बैठा है, इसलिए टर्माइट इसको नहीं कहा। तो दिस नॉलेज अगर उसके पास में इंजीनियर बन के भी ये नॉलेज नहीं होगा तो हम ऐसे बम्बू काट देगा, लगाएगा, पूरा टर्माइट का देगा। लेकिन ये नॉलेज ट्रेडिशनल अगर उसमें नॉलेज होगा तो उसको इतना सीजन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब टर्माइट नहीं कहेगा। इसलिए हम लोग ऐसा एजुकेशन देना चाहता है कि जो इंजीनियर बने लेकिन ये नॉलेज है, और वो आईएएस डिप्टी कलेक्टर बनिए, आईपीएस बनिए, एसपी बनिए, वो अपना कस्टम, अपना ट्रेडिशन नॉलेज के बारे में भी उसको पूरा अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। हाँ, लॉ के साथ साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में अपना जहाँ पे ट्रेडिशन का बात होता है तो वहाँ में अपना कस्टमरी लॉ का क्या है, ही शुड एबल टू नो। तो ये जो हम देख रहा है कि दिस इज सस्टेनेबिलिटी, जो हमारे इंडिजिनस कल्चर के बारे में जो हम सस्टेनेबिलिटी इसको ला सकता है, दे सकता है, ये हम लोग का कोशिश कर रहा है। एंड आई होप कि ये डेफिनेटली आगे तक जाएगा। एंड विद दिस मैं यहाँ पे आई वांट टू मेक अ 3 सबमिशन इन दिस अगस्त फोरम, एज आई मेंशन। वन इज कि हमको जो कन्वर्जन है, वी नीड टू मेक अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी, फ्रेम अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू कर्ब द कन्वर्जन बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। सेकेंड है कि इंडिजिनस, the philosophy of indigenous faith and culture need to be encouraged because this is the most eternal, universal and democratic system. इसको ये करना चाहिए। और with the infrastructure development and the personal development, the spiritual development must be even emphasized. तो ये मेरा आज का इस अगस्त हाउस में मेरा ये this will be my 3 submission, and with this I conclude my speech, I think before the time. Thank you very much. One you have concluded as discipline. I'm very happy. Thank you so much. You have talked about Indian philosophy, Vasudhaiva Kutumbakam. World is one family. It's a very good thing which we the travelers believe. And